Once again, welcome to my YouTube channel DGP Maths, where we make maths easy. Today we are going to study logarithm. You have already studied little bit of logarithm. Here we are going to study exponential form, how to convert exponential form to logarithmic form. Similarly, from logarithmic form to exponential form, some working rules of logarithm and its example. So friends, what is exponential form? Exponential form, or we can say घातांकीय स्वरूप in Hindi. So if I write a, this is base, any power of that, say for example x is the power of a, is equal to y. So here a raised to x is equal to y. So here this a is called base, this x is called index, or we can say power, and y is its answer. So this form is known as exponential form, or we can say घातांकीय स्वरूप. Now I want to write this exponential form into logarithmic form. So how to convert this exponential form into logarithmic form? So first of all, here we will write log, L-O-G. Here L will be small. So we will take log of whatever the answer of this expression, a raised to x is equal to y. So we will take logarithm of this y. And friends, there is some gap between log and y. Here we have to write something, whatever the base is there. So here in our case base is a. So we will write base a. This a is between log and y, but this is little bit below the level of log and y. So we read this as log y base a is equal to whatever the index of this, that is x. So this form is called as logarithmic form, and we read this as log y to the base a is equal to x. So if we have any exponential form a raised to x is equal to y, we can convert this exponential form into logarithmic form. Similarly friends, we can convert from logarithmic form to exponential form. Now here what are the conditions on this a, x and y? So friends, for that first of all we have to understand what is R. R is set of real numbers. Real number means वास्तविक संख्याओं का गण. R plus, if I write down over here plus, then this means set of positive real numbers. तो यहाँ पे हमने दो साइड R और R plus देखे. Now what are the restriction on A, X and Y that we have to see? So here this A must belongs to R plus, but we will omit 1 from this. Means the value of A, this base, should not be equal to 1. It should be positive real number and excluding 1. यानी हमने 1 को वहां से निकाल दिया है, यानी a की वैल्यू 1 नहीं हो सकती है और कोई भी हम पॉजिटिव रियल नंबर ले सकते हैं. Similarly friend, here the condition on x is x belongs to R, means x could be any real number, and condition on y is y belongs to R
plus means positive real number. So these three are the conditions on a, x and y. So once again friend, this form is known as exponential form. This form is known as logarithmic form. We can convert from exponential form to logarithmic form. Similarly, logarithmic form to exponential form. Now let's see some example based on this. For example, I have 5 square is equal to 25. Here our base is 5, its index is 2 and answer is 25. So 5 square is equal to 25. We know that 5 square is equal to 25. So this is known as exponential form. Now I want to convert this exponential form into logarithmic form. So how to convert? So first of all we will write log. Then we will take logarithm of answer of this expression. That is why, so here in our case we will take log of 25 to the base. What is base? Is a. Here our base is 5. So we will write 5. So log 25 base 5 is equal to whatever the index power of this, that will be the answer. So 2. So we read this as log 25 base 5 is equal to 2. So this is logarithmic form of this exponential form. Let's take another example. 81 raised to 1 by 2. 81 raised to 1 by 2 means root 81 we can say is equal to 9, taking positive square root. So now I want to convert this exponential form into logarithmic form. So how to convert? So first of all we will write log. Log of what? So whatever the answer of this expression, so log 9. Now base will be this 81. So log 9 to the base 81 is equal to the index or power, so that is 1 by 2. So this is the logarithmic form of 81 raised to 1 by 2 is equal to 9. So here we have converted from exponential to logarithm, but we can convert similarly logarithmic form to exponential form. For example, if I have this expression log 27 to the base 3 is equal to 3. I want to convert this logarithmic form into exponential form. So how to convert this logarithmic form into exponential form? So first of all, from this to this, so we will write base. So here base is 3. Then we will write whatever the answer of logarithm in power. So 3 raised to 3 is equal to logarithm of 27. So that will come over here 27. So this is the exponential form of this logarithmic form. So friends, using this we can convert from exponential form to logarithmic form. Similarly, logarithmic form to exponential form. So once again, let's repeat. A raised to x is equal to y. Here a is the base, or we can say Aadhar. Power x. X is index or power, and its answer is y. So this form is known as exponential form. Now I want to convert this exponential form into logarithmic form. So how to convert into logarithmic form? So first we will write log, then whatever the answer of this a raised to x, that is y. So log of y to the base, this is the base, so base a is equal to x. हमें इसे कैसे रीड करना है फ्रेंड्स? So log y to the base a is equal to x, और simply log y base a is equal to x. यहाँ पर ये जो बेस है उसे हम log और इस y दोनों के बीच में लिख रहे हैं, और उसका लेवल थोड़ा सा log और y से
नीचे होगा, वो हमें याद रखना है लिखते समय। सो आई होप फ्रेंड कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ वी आर गोइंग फॉर वर्किंग रूल्स ऑफ लॉगरिथम। Now friends, we want to study working rules of logarithm. These working rules are like weapons for us, because using these working rules we are going to solve examples. So first working rule is product rule. If we have logarithm of x into y, here we have multiplication of x and y to the base a, then working rule for this, that is product rule, is what log will do, this will become equal to log of x to the base a plus log of y to the base a. Log of x into y, multiplication, or we can say product of x and y to the base a, is equal to log of x base a plus log of y base a. So what log is doing, यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन है x और y का, उसे वो स्प्लिट कर रहा है और उसे एडिशन में कन्वर्ट कर रहा है। इस वर्किंग रूल को हम लेफ्ट से राइट, सिमिलरली राइट से लेफ्ट, दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। तो कैसे हम इसे यूज करें फ्रेंड्स? तो फॉर एग्जांपल, इफ आई हैव logarithm of 10 into x base a, बेस यहां पे हमने a ले लिया रैंडमली, तो यहां पे 10 and x इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। So using this rule what will happen, this log will separate 10 और x को सेपरेट कर देगा और उसे एडिशन में लाएगा। तो ये हो जाएगा log of 10 to the base a plus log of x to the base a। बेस यहां पर जो है वही बेस दोनों के लिए रहेगा। तो यहां पे हमने इस रूल को लेफ्ट से राइट यूज किया। सिमिलरली if I have log of 20 to the base a plus log of y to the base a, हमारे पास ये एक्सप्रेशन है। तो लॉगरिथमिक का ये प्रोडक्ट रूल यूज करके फ्रॉम राइट टू लेफ्ट वी कैन राइट दिस एक्सप्रेशन एज, यहाँ पे दोनों का बेस सेम होना चाहिए, बेस मस्ट बी सेम, then only we can use it this rule from right to left. So this will be equal to log of 20 into y to the base a। अगर ये बेस सेम नहीं है तो हम इसे यूज नहीं कर सकते हैं। So this rule is known as product rule, जिसे हम एग्जांपल में जब भी हमें x into y मल्टीप्लिकेशन में है या कोई भी दो मल्टीप्लिकेशन में है उसका लॉगरिथम है, उसे स्प्लिट करना है एडिशन में, तो इस रूल को यूज करेंगे। सिमिलरली अगर एडिशन में है, बेस सेम है, दोनों को हमें मल्टीप्लिकेशन में लाना है, तो इस रूल की हेल्प से हम उसे ला सकते हैं। नेक्स्ट रूल इज डिवीजन रूल। So in division rule, if we have log of x by y, यानी यहाँ पे x और y का डिवीजन और we can say quotient and base is a, so using this division rule we can write this as log of x to the base a, and here we have to write minus। प्रोडक्ट रूल में यहाँ पर हम प्लस लिखते थे, डिवीजन रूल पे यहां पे हम माइनस लिखेंगे। सो लॉग ऑफ y टू दी बेस a। तो लॉगरिथम का डिवीजन रूल क्या कर रहा है, यहां पे जो डिवीजन में है उसे वो सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर देगा। इस रूल को भी हम प्रोडक्ट रूल के जैसे ही लेफ्ट टू राइट एज वेल एज राइट टू लेफ्ट यूज कर सकते हैं। चलिए तो उसका एक एग्जांपल देखें हम। log of
10 by x to the base a। यहाँ पे 10 और x का डिवीजन है, तो इस रूल की हेल्प से इसे हम लिख सकते हैं log of 10 to the base a, then minus log of denominator that is x to the base a। तो हमने यहाँ पे लेफ्ट टू राइट यूज कर लिया। सिमिलरली log of 20 base a minus log of y base a। यहाँ पे दो लॉगरिथमिक टर्म का सब्ट्रैक्शन है, दोनों के बेस कंपलसरी सेम होने चाहिए, तभी हम ये रूल राइट टू लेफ्ट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों के बेस a है, तो इसे हम डिवीजन रूल की हेल्प से लिख सकते हैं log of 20। जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है वो न्यूमरेटर यानी कि अंश में आएगा, और जो सेकंड है वो डिनोमिनेटर में आएगा। सो log of 20 by y and base, जो दोनों का बेस है, that is a। So in this way we can use this division rule। From division we can convert this into subtraction। तो जब भी हमारे पास ऐसा कोई डिवीजन है और उसे हमें स्प्लिट करना है, तो वो सब्ट्रैक्शन में हम इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज पावर रूल। सो पावर रूल में क्या होता है, लॉगरिथम ऑफ x रेज टू n टू द बेस a। यहां पे log ऑफ x रेज टू n, x की पावर है n और उसका बेस है a। तो log क्या करता है, ये जो पावर है n वो आगे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो वो हो जाएगा n इंटू log ऑफ x base a। So once again friend, log of x raised to n base a is equal to, ये जो पावर है वो आगे log के आगे यहां पर मल्टीप्लिकेशन में आ गई। So n times log x base a या n into log x base a। तो हमने इस पावर को आगे ला दिया लेफ्ट टू राइट में। सिमिलरली अगर राइट टू लेफ्ट हम जा रहे हैं, तो log के आगे जो कुछ भी मल्टीप्लिकेशन में है उसे हम यहाँ x की पावर में लिख सकते हैं। सो वी कैन यूज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एज वेल एज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो इसका एक एग्जांपल देखें हम। फॉर एग्जांपल log ऑफ x रेज टू 20 बेस a। तो यहां पर x की पावर है 20, तो इस 20 को हम पावर रूल की हेल्प से आगे मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। सो दिस विल बी 20 टाइम्स log ऑफ x बेस a। सो log ऑफ x रेज टू 20 बेस a इज इक्वल टू 20 टाइम्स log x बेस a। तो उसका 20 यहां पर मल्टीप्लिकेशन में आ गया। तो ये जो रूल है वो हमने लेफ्ट टू राइट यूज किया। सिमिलरली if I have 10 log y to the base a, यहां पे 10 और log का मल्टीप्लिकेशन है 10 and this log y base a is in multiplication. So using this power rule from right to left, I can write this as log y raised to, ये जो 10 है मल्टीप्लिकेशन में वो पावर में आ जाएगा 10 to the base a। So friends, using these three rules, product rule, division rule, power rule, we can convert such forms, product multiplication into addition, division into such subtraction, and power we can take in multiplication, or something in multiplication we can take in power. Similarly friends, we have some values of log। So log 1 to the base a। कभी भी अगर हमारे पास 1 का लॉगरिथम है to the base a where a is not equal to 1, then its value will be 0। So log 1 base a equal to 0। इसके ऊपर से हम कह सकते हैं log 1 to the base 10 is equal to 0, log 1 base 20 is equal to 0 and so on। तो कहीं पे भी अगर हमें log 1 दिख रहा है तो उसकी वैल्यू हम डायरेक्टली 0 लिख सकते हैं।
Next is log a base a. यहां पर जिसका हम log ले रहे हैं और base both are same, so in that case its value will be 1. इसे कैसे यूज करें? log 20 base 20, for example log 20 base 20, यहां पर ये दोनों सेम है, so 20 20 सेम, so answer will be 1. log 25 base 25 is equal to 1. So in this way log a base a is equal to 1. Next is a raised to log x to the base a. यहां पर फ्रेंड पहले ये a है, उसकी पावर में है ये पूरा एक्सप्रेशन log x base a, और उसमें जो बेस है वो a है, यानी ये जो बेस है और log का जो बेस है वो दोनों अगर सेम हो तो इसका आंसर हो जाएगा x, this. So a raised to log x base a is equal to x, but here this a and this a must be same. इसे कैसे यूज कर सकते हैं? So for example 10 raised to log y base 10 है, तो यहां पर ये 10 और ये 10 दोनों सेम है, तो इसका आंसर हो जाएगा y. चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं 25 raised to log x base 25, तो यहां पर भी ये 25 और ये जो बेस 25 वो था सेम, सो इट्स आंसर इज x. तो ये जो वर्किंग रूल्स हैं ये हमें एग्जांपल्स को सॉल्व करने में हेल्प करेगा. इसकी हेल्प से हम लॉगरिदमिक टर्म्स का सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं. ये सभी रूल्स हमें याद रखने हैं जिससे हम इसे कभी भी यूज कर सकें. इन सब रूल्स के जो नाम है प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल, पावर रूल, और ये सब जो फॉर्मूलाज हमें याद रखनी है, जो पर्टिकुलर वैल्यूज हैं लॉगरिदमिक एक्सप्रेशन की, वो हमें याद रखनी है. तो वंस अगेन फ्रेंड, प्रोडक्ट रूल में क्या होता है? यहाँ पे x और y का मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट रूल की हेल्प से हम उसे स्प्लिट कर सकते हैं, एडिशन में वो कन्वर्ट हो जाएगा. यहाँ डिवीजन रूल में x और y का डिवीजन है, तो डिवीजन रूल की हेल्प से वो स्प्लिट होकर यहाँ सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा. पावर रूल में जो पावर है वो पावर आगे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी. log 1 टू दी बेस a, यानी log 1 की वैल्यू किसी भी बेस के लिए एक्सेप्ट a 1 नहीं होना चाहिए, उसके लिए ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगी. सो log 1 टू दी बेस a इक्वल टू 0. log a बेस a, यानी a और a अगर सेम है, जिसका हम log ले रहे हैं और बेस, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1. फॉर एग्जांपल log 20 बेस 21, log 25 बेस 25 is equal to 1, log 100 बेस 100 1, and so on. नेक्स्ट है यहाँ पे a raised to log x बेस a. तो ये जो है बेस a और log का बेस दोनों अगर सेम हो तो उसका आंसर x आ जाता है. तो जैसे हमने यहाँ पर यूज किया, यहाँ पे 10 है और उसकी पावर में है log y to the base 10, so this will be y, and here 25 log x base 25 are same, so answer will be x. I hope friends कि ये जो रूल्स है वो क्लियर हो गया. अब हम इक्वालिटी ऑफ लॉगरिथम एंड चेंज ऑफ बेस, वो दो रूल्स देखेंगे. Now equality of logarithm. So if we have log x to the base a is equal to log y to the base a, यहां पर log x और log y सेम है, दोनों का बेस a है. Then from this we can write, this implies x must be same as y. So if log x is equal to log y base a for both the terms, then x equal to y. Similarly friends, we can write if x equal to y, then
log x is equal to log y to the base a, यानी इसका अगर हम log ले रहे हैं, दोनों का बेस सेम रखेंगे तो दोनों सेम आएंगे. So here we can write double implies, means अगर log x base a is equal to log y base है, then we can write x equal to y. Similarly, if x is equal to y, then we can write log x base a is equal to log y base a. इसे हम एग्जाम्पल में कैसे यूज कर सकते हैं? So if somewhere we have log of x base a is equal to log of 10 base a, so from this we can write this x and 10 must be same, so x is equal to 10. So in this way we can use equality of logarithm. Next is change of base. चेंज ऑफ बेस यानी लॉगरिथम का जो बेस है उसे हम चेंज करना चाहते हैं. सो लॉग ऑफ एक्स बेस वाई, तो यहां पे हमने लिया है लॉगरिथम ऑफ एक्स बेस वाई. तो अगर मुझे इसका बेस चेंज करना है देन आई कैन राइट दिस एज लॉग ऑफ एक्स अपॉन लॉग ऑफ दिस जो बेस है वो दैट इज लॉग वाई, log x अपॉन जो बेस है log y, और इन दोनों का बेस हम जो भी रखना है वो हम रख सकते हैं. तो सपोज मैंने यहां पर a लिया है, बट दिस a शुड नॉट इक्वल टू 1. तो log x बेस y को हम लिख सकते हैं log x बेस a अपॉन log y बेस a. यहां पर a की जगह पे सपोज हमें 10 रखना है, log x बेस 10 log y बेस 10, नो प्रॉब्लम. दोनों के बेस सेम होने चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव log 100 बेस 25, इसका बेस मुझे चेंज करना है, देन आई कैन राइट दिस एज log 100 अपॉन log 25. अब इन दोनों का बेस हमें जो भी रखना है रख सकते हैं, लेकिन वो 1 नहीं होना चाहिए. तो सपोज मैं यहां पे ले रहा हूं 10, तो ये हो गया log 100 बेस 10 अपॉन log 25 बेस 10. सो इन दिस वे वी कैन यूज दिस चेंज ऑफ बेस, और इसकी हेल्प से हम उसका बेस चेंज कर सकते हैं. सिमिलरली फ्रेंड्स, अगर हमारे पास ये एक्सप्रेशन है तो उसके ऊपर से हम ये लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव log 200 बेस 10 अपॉन log 100 बेस 10, so using this change of base I can write this as log of जो न्यूमरेटर में है उसका हम log लेंगे that is 200, और डिनोमिनेटर में जो है वो बेस में आएगा that is बेस 100. तो हमने इसे राइट टू लेफ्ट भी यूज किया और लेफ्ट टू राइट भी यूज किया. तो ये चेंज ऑफ बेस का एक फॉर्मूला है. इसी की दूसरी फॉर्मूला है चेंज ऑफ बेस की. आई कैन राइट दिस एज log ऑफ x बेस y. अगर हम इसे 1 अपॉन में लिखें 1 के डिनोमिनेटर में, तो log x बेस y जो है वो हो जाएगा log y बेस x. तो ये चेंज हो जाएगी. यहाँ पे x बेस y था, 1 के डिनोमिनेटर में हम इसे ले गए तो log y बेस x हो गया. तो इसे हम एग्जांपल में कैसे यूज करेंगे? सो इफ आई हैव log 100 बेस 25, इसका बेस मुझे चेंज करना है और डिनोमिनेटर में ले जाना है, तो हम इससे लिख सकते हैं 1 अपॉन log 25 बेस 100. तो 25 जो बेस में था हमने उसका log ले लिया और 100 बेस में आ गया. सिमिलरली वी कैन राइट, इफ आई हैव 1 अपॉन log 20 बेस 10, इसे अगर इस टर्म को मुझे न्यूमरेटर में ले जाना है डिनोमिनेटर से, तो इसे मैं लिख सकता हूं log 10 बेस 20. तो ये जो बेस है वो हमने
चेंज कर दिया, तो इक्वालिटी ऑफ लॉगरिथम एंड देन चेंज ऑफ बेस में हमने इसे दो तरह से देखा, log x base y is equal to log x upon log x base a upon log y base a. Here a could be anything but a should not equal to 1. We have seen its example. log x base y उसे अगर हम 1 upon में ले जाते हैं तो log y base x, तो ये बेस चेंज हो गया, जिसे हम लेफ्ट टू राइट, सिमिलरली राइट टू लेफ्ट दोनों वे में यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये सब जो हमने रूल्स पढ़े, प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल, इक्वालिटी, चेंज ऑफ बेस, पावर रूल्स, और जो हमने वैल्यूज देखी, log 1 की वैल्यू हमने 0 देखी, log a बेस a की वैल्यू हमने 1 देखी, a रेस टू log x बेस a की वैल्यू हमने x देखी। तो ये सब जो है वो हम एग्जांपल्स को सॉल्व करने के लिए, उन्हें प्रूव करने के लिए, लॉगरिथम टर्म को सिंप्लीफाई करने के लिए इन सब रूल्स को यूज करेंगे। तो ये सभी रूल्स आपको याद होने चाहिए। याद करने के लिए ये सभी रूल्स आप एक बार समझ लीजिए बराबर, इनके जो हमने ये एग्जांपल्स किए हैं उस एग्जांपल्स की आप प्रैक्टिस करिए, ताकि आपको वो रूल क्या है उसे कैसे यूज कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट एज वेल एज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और फिर उसे आप 5-10 टाइम्स लिखिए उन रूल्स को और मेमोराइज करिए, ताकि हम उन्हें एग्जांपल्स में विदाउट एनी डिफिकल्टी यूज कर सकें। Now after doing working rules of logarithm, we want to solve some examples. So example is simplify और find value of, किसी भी तरह से एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है log 64 बेस 8, इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स? सो इट्स सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले तो एग्जांपल को ऑब्जर्व करना है, क्या एग्जांपल में हमें क्या दिया हुआ है, किसका लॉग है, बेस में क्या है। तो यहां पर हमें दिया हुआ है log 64 to the base 8. Now we know that we can write 64 as 8 square. 64 को हम 8 के स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो यहां पे फ्रेंड हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल we will write this log 64 base 8, हमने जो एग्जांपल दिया उसे लिख दिया। Now I can write this 64 as 8 square to the base 8. अब फ्रेंड जो भी हमारे वर्किंग रूल्स है वो सभी वर्किंग रूल्स हमें परफेक्ट याद होने चाहिए, तभी हम यहाँ पर लॉजिक लगा पाएंगे। तो यहाँ पे log 8 बेस 8 हो गया। अब हमारे पास बहुत सारे रूल है, पावर रूल है, फिर हमने जो फॉर्मूला की थी log a to the base a is equal to 1, यानी जिसका हम log ले रहे हैं और जो बेस है वो दो अगर सेम हो तो आंसर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे log 8 बेस 8 तो है, लेकिन ये जो 2 है दैट इज इन पावर, तो उस पावर का क्या करें, तो हमारे पास पावर रूल है। तो पावर रूल क्या है फ्रेंड्स, हमारे पास log x raised to n base a is equal to n times log x base a. This is our power rule. तो इस रूल की हेल्प से हम इसे लिख सकते हैं, ये जो पावर है 2 वो आगे मल्टीप्लिकेशन में आएगी, सो 2 टाइम्स log 8 बेस 8। तो ये पावर रूल से हमने इस पावर को आगे मल्टीप्लिकेशन में आ गया, सो 2 into या 2 टाइम्स log 8 बेस 8। अब फ्रेंड इस log 8 बेस 8 का हम क्या करें, तो हमारे पास एक फॉर्मूला थी कि log a base a is equal to 1. So using this we can say log 8 base 8 is equal to 1. So this is equal to 2 into 1, इसकी वैल्यू 1 हो गई इस फॉर्मूला की हेल्प से। So this is equal to 2. So log 64 base 8 is equal to 2. तो हमने क्या किया, एग्जांपल को ऑब्जर्व किया, 64 और 8 है, हमें पता है 64 को हम 8 के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो ये सब जो है वो हमें एग्जांपल को ऑब्जर्व करके लॉजिक लगाना है कि स्क्वायर है, क्यूब है, इसका स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, या कैसे हम उसे सेट कर सके। और जो भी हमारे पास वर्किंग रूल्स है उन्हें हम यहाँ पर फॉर्मूला में यूज करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज log 81
बेस 3, यहां पे हमने लिख दिया log 81 बेस 3। तो यहां पर फिर से फ्रेंड क्या यूज करेंगे हम, तो यहां पे 3 और 81 है हमारे पास, तो 3 और 81 में कैसे कोई रिलेशन स्टेब्लिश हो सकता है, तो वी कैन राइट दिस 81 एज 3 into 3 into 3 into 3 means 4 times multiplication of 3, so we can write this as 3 raised to 4 and base is 3 because 3 raised to 4 करेंगे हम, so answer is 81. So now again as we have done in this example, ये जो पावर है 4 वो आगे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी, so 4 times log 3 base 3, ये कहां से किया हमने, we have used this rule, जो पावर है वो आगे आ गई पावर रूल की हेल्प से। नाउ log 3 base 3 इस फॉर्मूला की हेल्प से इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, सो 4 into 1, सो दिस इज इक्वल टू 4। तो हमें फ्रेंड्स एग्जाम्पल को ऑब्जर्व करना है, एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, बेस में क्या दिया हुआ है, बेस और उन दोनों को हम सेम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर बेस और जिसका हम लॉग ले रहे हैं वो सेम हो जाएगा तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू बहुत ही इजीली मिल जाएगी, log a बेस इक्वल टू 1। तो इस तरह से हमें एग्जांपल्स को सॉल्व या सिंप्लीफाई करना है। Some more examples. So here simplify again, log of 0.01 base 10। तो यहाँ पे फिर से हमें एग्जांपल को ऑब्जर्व करना है, यहाँ पे log of 0.01 बेस 10 दिया हुआ है, तो हम ये ट्राई करते हैं कि जिसका log है और बेस उसे सेम करें। तो यहां पर हम 0.01 को, सो वी स्टार्ट विथ log of 0.01 to the base 10, I can write this 0.01 as 1 upon 100, 1 upon 100 means 0.01 to the base 10। अब इस एग्जांपल को फ्रेंड्स हम दो तरह से कर सकते हैं। सो फर्स्ट मेथड इज log of 1 upon इस 100 को हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर टू द बेस 10, 100 को हमने लिख दिया 10 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू log ऑफ इस 10 स्क्वायर को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में यानी छेद से अंश में लाएंगे तो उसकी पावर की साइन चेंज हो जाएगी। तो यहाँ डिनोमिनेटर में वो 10 स्क्वायर है तो उसे अगर हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो वो हो जाएगा 10 रेज़ टू -2 टू द बेस 10। तो फ्रेंड्स यहाँ पे log ऑफ 10 एंड बेस 10 बोथ आर सेम, यहाँ पे हमें -2 प्रॉब्लम कर रहा है तो उसे हम पावर रूल की हेल्प से आगे ले जाएंगे। सो दिस इज इक्वल टू -2 टाइम्स log ऑफ 10 बेस 10। तो यहाँ पे हमने कौन सा रूल यूज किया, पावर रूल। पावर रूल से ये जो पावर है -2 वो आगे मल्टीप्लिकेशन में आ गई और यहाँ पे हो गया log 10 बेस 10। नाउ वी नो दैट द वैल्यू ऑफ log 10 base 10 is 1 using that formula log a base a is equal to 1, so this is equal to -2 into 1, so that is -2। तो इसका आंसर हमें मिला -2। इसी एग्जांपल को यहां से हम दूसरी मेथड से कर सकते हैं, यहां पे हम डिवीजन रूल यूज कर रहे हैं तो डिवीजन रूल यूज करेंगे तो डिवीजन रूल से हम लिख सकते हैं log 1 to the base 10 minus log 100 to the base 10। हमने डिवीजन रूल यूज कर दिया, log of x by y base a is equal to log x base a minus log y base a। Now we know that the value of log 1 is 0, हमने वो फॉर्मूला देखी थी log 1 to the base a equal to 0, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। फॉर्मूला मैं लिख देता हूं log 1 to the base a is equal to 0, तो इस फॉर्मूला की हेल्प से log 1 to the base 10 की वैल्यू 0 हो गई। अब इस एग्जांपल को जैसे हमने आगे एग्जांपल सॉल्व किए उस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। Here I can write this 100 as 10 square
टू दी बेस 10। अब फिर से इस पावर को हम आगे ले जाते हैं, सो दिस माइनस, ये जो पावर है वो यहां पर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी, तो माइनस 2 इंटू लॉग 10 बेस 10। अब इसकी वैल्यू हो गई फ्रेंड्स 1। कौन सी फॉर्मूला, लॉग a बेस a इक्वल टू 1, जो हमने आगे के एग्जांपल में भी यूज की है। सो माइनस 2 इंटू 1, सो विच इज -2। तो इस मेथड से करें या इस मेथड से करें, आंसर विल बी सेम। दोनों के लिए हमें -2 ही आंसर मिला है। नाउ सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल इज log of 1 over 625 base 5। तो log of 1 upon 625 base 5, इस एग्जांपल को कैसे करें, तो इस एग्जांपल को भी हम इन दोनों मेथड से कर सकते हैं। तो I can write this as log of 1 upon 5 into 5 25, 20 into 5 125, 120 into 5 625. So this is 5 raised to 4 to the base 5। हमने सभी एग्जांपल्स में ट्राई किया है कि जिसका लॉग है और बेस उसको सेम करने का ट्राई किया है। So this is equal to log of, इसे हम लिख सकते हैं इसी मेथड से, 10 स्क्वायर को हम ऊपर ले गए थे तो पावर चेंज होगी, यहाँ पे हो जाएगा 5 रेज टू -4 टू दी बेस 5। सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे पावर रूल की हेल्प से इस -4 को हम आगे ले आते हैं। सो -4 इंटू लॉग 5 बेस 5। नाउ दिस वैल्यू log 5 base 5 is equal to 1 using the formula log a base a. So -4 into 1 is equal to -4। तो इसका आंसर में -4 मिला। अब फ्रेंड्स, जैसे हमने यहाँ पे डिवीजन रूल यूज करके एग्जाम्पल को सॉल्व किया था, इस एग्जाम्पल को भी हम डिवीजन रूल से भी कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ इसे लिख दूं log of 1 base 5 minus log of 5 raised to 4 base 5. So log 1 is equal to 0 using this formula, minus ये जो 4 है वो पावर रूल से यहाँ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। सो 4 into log 5 base 5, सो -4, इसकी वैल्यू हो गई 1। सो आंसर इज -4। तो हमारे पास जो भी वर्किंग रूल्स हैं उन्हें आप अलग अलग तरह से यूज कर सकते हैं, और एक ही एग्जांपल को हमने दो मेथड से यूज किया। यहाँ पे हमने पावर रूल यूज किया, पावर को 10 स्क्वायर को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले गए तो नेगेटिव पावर हो गई, या उसको डिवीजन रूल यूज कर दीजिए, अलग कर दीजिए, उससे भी हम कर सकते हैं, बट आंसर विल बी सेम। तो कोई भी वर्किंग रूल आप यूज करिए। तो इन सब एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप इन वर्किंग रूल्स को बहुत ही इजीली एग्जांपल्स में यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल इज log 2 base 8। Now how this example is different from previous examples? यहाँ पर base is bigger than whatever we are taking in logarithm. So logarithm of 2, log of 2 base 8. So 8 जो है वो 2 से बड़ा है। तो हम जनरली क्या करते थे, अगर 8 होता यहाँ पर और बेस में 2 होता तो 8 will be 2 क्यूब और 3 आगे आ जाता, तो वो बहुत ही इजीली हो जाता। लेकिन यहाँ पर वो 8 जो है वो बेस में है, तो उसे करने के लिए हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड? तो हमारे पास इस एग्जांपल को सॉल्व करने की दो मेथड है। सो मेथड 1, हम बेस चेंज कर देते हैं। बेस चेंज करने की फॉर्मूला क्या थी? log of x base y is equal to 1 upon log y to the base x। ये हमारा चेंज ऑफ बेस का फॉर्मूला था। तो इस रूल की हेल्प से log of 2 to the base 8, इसको हम लिख सकते हैं 1 upon log 8 base 2। ये चेंज हो गया। अब हम log 8 base 2 को सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 1 upon log 8 को हम लिख सकते हैं 2 क्यूब to the base 2।
सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन ये जो पावर है वो आगे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी, सो 3 log 2 base 2, सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, ये log 2 base 2 की वैल्यू हो जाएगी 1, सो आंसर इज 1 अपॉन 3। तो ये एक मेथड हो गई, इसका आंसर हमें 1 अपॉन 3 मिल गया। सेकेंड मेथड इज कि यहां पे हम 2 को भी 8 की पावर में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड उसके लिए सबसे पहले हम ये याद रखते हैं कि nth रूट ऑफ x, इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं? सो आई कैन राइट दिस एज इन पावर 1 upon n. So we know that cube root of 8 is equal to 2. So I can write this as 8 raised to 1 by 3. 8 का क्यूब रूट है घनमूल, so 8 raised to 1 by 3 हम लिख सकते हैं इसकी हेल्प से। ये हमें याद रखना है बेसिक। तो 8 raised to 1 by 3 is equal to 2। तो हम 2 को 8 raised to 1 by 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। So now log 2 to the base 8। Now I can write, हमें करना क्या है, बेस और जिसका लॉग है उसे सेम करना है। तो 2 को हम लिख सकते हैं 8 raised to 1 by 3 to the base 8। अब ये सिंपल हो गया एकदम। 1 by 3 जो पावर है वो आगे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी, सो 1 by 3 log 8 to the base 8। Now this will be 1 using our formula log a base a equal to 1, so 1 upon 3 into 1, so this is equal to 1 upon 3। तो हम इस मेथड से करें या इस मेथड से करें, आंसर विल बी सेम। तो आपको जो भी कन्वीनियंट हो वो आप कर सकते हैं। हमें सिर्फ याद ये रखना है कि nth रूट ऑफ x we can write as x raised to 1 by n। सपोज स्क्वायर रूट है तो उसे हम लिख सकते हैं x raised to 1 by 2, क्यूब रूट ऑफ x raised to 1 by 3, fourth root of x raised to 1 by 4। so in general nth root of x is equal to x raised to 1 by n। तो क्यूब रूट ऑफ 8 is equal to 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 8 raised to 1 by 3 is equal to 2। तो हमने यहाँ पे 2 की जगह पे 8 raised to 1 by 3 लिख दिया। अब ये बेस और ये सेम हो गए, पावर को हमने आगे ले दिया यूजिंग पावर रूल, और फिर ये log a base a की फॉर्मूला, वी गेट आंसर वेरी इजीली। Next example is 49 raised to log 2 to the base 7। तो फ्रेंड यहाँ पे हम इसे कैसे सॉल्व करें? यहाँ पे 7 है log का बेस, ये 2 है और वो पूरा जो टर्म है वो 49 की पावर में है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक फॉर्मूला याद करेंगे जो हमने किया था, a raised to log x to the base a is equal to x। यानी ये a और ये a, यानी यहाँ पे a की पावर में जो है और log का जो बेस है, अगर वो दो सेम हो तो आंसर x हो जाता है। तो यहाँ पे इस एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए हम इस फॉर्मूला को यूज करने का ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे a की जगह पे है 49 और ये जो a है वो 7 है। So how 7 and 49 are correlated? So we know that 7 square is equal to 49। तो इसे हम कैसे यूज करें? तो चलिए एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। So 49 की पावर में है log 2 to the base 7। अब हमें इन दोनों को सेम करना है ताकि हम ये फॉर्मूला यूज कर सके। So I can write this as 49 7 square और उस पूरे की पावर में है log 2 to the base 7। 49 को हमने लिख दिया 7 स्क्वायर और 49 की पावर में ये है, तो 7 स्क्वायर की पावर में आ गया log 2 base 7। Now we have one formula a raised to m raised to n। a की पावर है m और उसकी पावर है n, तो इसे हम लिख सकते हैं a raised to m into n, that is a raised to m। तो इसकी हेल्प से इसे हम लिख सकते हैं 7 की पावर है 2
और उसकी पावर log 2 बेस 7, तो यहाँ पे 2 और log 2 बेस 7 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, सो 2 log 2 base 7. Once again friends, using this formula 2 और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब फिर से फ्रेंड ये जो फॉर्मूला यूज करनी है, यहाँ पे a रेज टू log x बेस है, यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 2 है एडिशनल। तो इस 2 का हम क्या करें, तो इस 2 को हम ले जाते हैं पावर में, पावर रूल की हेल्प से। तो पावर रूल क्या था हमारा, राइट टू लेफ्ट अगर हम यूज करें तो n log x बेस a है, तो इस पावर को हम मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं, तो वो हो जाएगा log x रेज टू n बेस a। तो यही रूल यूज करके इस पावर को हम यहां पे ले आते हैं इस मल्टीप्लिकेशन से। सो दिस इज इक्वल टू 7 log 2 स्क्वायर बेस 7। अब 7 raised to log, now 2 square we can write as 4 base 7. Now friend, this is exactly in form of our formula. तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 7 और ये जो base 7 है both are same, so using this formula its answer is 4. Once again friend, यहाँ पे हमें ये जो base है और उसकी पावर में जो log है उसका बेस उसे सेम करना है ताकि हम ये फॉर्मूला यूज कर सकें। तो यहाँ पे हमने 49 को लिख दिया 7 स्क्वायर log 2 बेस 7। अब a की पावर n और पूरे की पावर n है, तो वो हो जाएगा a रेज टू mn। तो यहाँ पे 7 स्क्वायर और उसकी पावर है log 2 बेस 7, तो 2 और log 2 का मल्टीप्लिकेशन हो गया यहाँ पे। अब हमें ये फॉर्मूला यूज करने के लिए ये 2 प्रॉब्लम कर रहा है, 2 नहीं होना चाहिए, तो हमने इस पावर रूल को यूज करके जो आगे मल्टीप्लिकेशन में है उसे हम पावर में ले गए। तो ये जो 2 है उसे हम पावर में ले गए, इस 2 की पावर में आ गया वो। नाउ वी नो दैट 2 स्क्वायर इज 4, तो यहाँ पे हमने 4 लिख दिया। अब ये एग्जैक्टली हमारे फॉर्मूला के फॉर्म में आ गया। यहाँ a की जगह पर 7 है, x की जगह पर 4 है, तो ये 7 और ये बेस 7 दोनों सेम हो गए, तो इसका आंसर 4 हो गया। सो आई होप फ्रेंड्स कि इस टाइप के एग्जांपल जो है इवैल्यूएट करने के, सिंपलीफाई करने के या वैल्यू फाइंड करने के वो आप बहुत ही इजीली कर पाएंगे। हमारा जनरल आइडिया क्या है कि हम बेस है और जिसका लॉग है उसे सेम करने का ट्राई करते हैं, उसके लिए डिवीजन रूल, प्रोडक्ट रूल, चेंज ऑफ बेस या ऐसा कुछ भी सिंप्लीफिकेशन करके उसकी वैल्यू हम बहुत ही इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो इन सभी एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए द की इज वर्किंग रूल। अगर वर्किंग रूल की आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो ये एग्जांपल बहुत ही इजीली हो जाएंगे।